हेलो वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। तो फिर से एक और केस सामने आया है जहां एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। ये है कहानी सोनम रघुवंशी की, जो हनीमून पर अपने हस्बैंड के साथ मेघालय जाती है और अपने हस्बैंड, जिसका नाम है राजा रघुवंशी, उसका मर्डर करवाने के लिए वो बहुत ही फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करती है और खुद भी एक्टिवली उस पूरे मर्डर में इन्वॉल्व होकर इस पूरे मर्डर को एग्जीक्यूट करती है। तो ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस अभी तक हो चुके हैं इंडिया में, जहाँ वाइफ ने किसी भी कारणवश अपने हस्बैंड को मार दिया। और वो एक कारण जो सीधा-सीधा हम सबको समझ ये आता है कि वो मैरिज में डिससैटिस्फाइड थी और वो किसी भी तरह बस उस मैरिज से निकलना चाहती थी। और इसीलिए वह एक ऐसा स्टेप उठा लेती हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक फीमेल अपने हस्बैंड को मरवा भी सकती है या मार सकती है, वो भी इतने ब्रूटल तरीकों से, जो शायद एक बहुत ही हाई लेवल की क्राइम करने वाला इंसान सोच सकता है। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर हमारी इंडियन फीमेल्स के अंदर इतनी प्लानिंग कैपेबिलिटी है, इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी फॉरसाइटनेस है कि वो अपने हस्बैंड का इतनी स्ट्रैटेजिकली मर्डर तक प्लान कर लेती है, तो तुम वो क्रिएटिविटी, वो प्लानिंग कैपेबिलिटी, वो फॉरसाइटनेस कुछ इनोवेशन करने के लिए, कुछ इन्वेंशन करने के लिए क्यों नहीं लगाती? आई मीन, वहाँ लगाओ ना अपना टैलेंट, वहाँ दिखाओ अपना टैलेंट। Why are you using your higher order thinking for killing a human, for killing somebody's son, for killing somebody's family member? It is extremely disappointing, and this is putting a question mark on the integrity and saneness of a female's mind. I mean, what are you up to? आप क्या सोच के किसी के साथ शादी कर रहे हो कि आप you will get away just by murdering a person and you will not be caught? Of course, all those cases in the past where the wife has murdered the husband have been caught. लेकिन तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा झंड हो गई है, बिकॉज अब तुम जेल जाती रहोगी, पुलिस के चक्कर लगाती रहोगी, कोर्ट के चक्कर लगाती रहोगी, मुकदमे पे मुकदमे तुम पे होते रहेंगे और हो सकता है कि या तो तुम्हें डेथ सेंटेंस दिया जाए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। तो व्हाट गुड हैज इट सर्व टू यू बाय रिजॉर्टिंग टू सच एक्सट्रीम मेजर्स? मेरी ये सारी इंडियन फीमेल्स से रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें कोई लड़का किसी भी कारणवश पसंद नहीं आता है, maybe because of his looks, because of his financial status, because of his educational background, because of his family conditions, because of his choices, lifestyle, or goals of life, just back off. Don't go ahead with that proposal. ये सोच के कि दुनिया को दिखाने के लिए you would have a big fat Indian wedding and then you will take a divorce, or you will resort to such heinous crime where you would murder the husband, or you would take any extreme measures where you will have an extramarital affair because adultery is allowed. It's not gonna serve any purpose. You are a human, you are not an animal. ये चीज मैं men के लिए बोलती थी कि men behave like animal in the society, but now females have also started adopting animalistic attitude towards life. Life is a matter of responsibility, great responsibility. You cannot make decisions just to avoid them later, or in order to get rid of those responsibilities which come after taking those decisions, you murder someone or you resort to animalistic measures in life. Females need to be aware of what do you really want in life, what really fulfills you, what is your priority, and you need to be very clear to your parents about the choices you want to make in life and communicate them very clearly and very assertively that this is what I want and this is something I don't want. Even maybe you will have to have sometimes heated conversations or arguments or fights, but at least it would not end up in this kind of a heinous crime which
is happening in today's society, where the girl is getting married because she is pressurized by the family members, or she feels pressured by the society due to her age or due to her financial condition or whatever. And then ultimately she feels so unfulfilled that she decides to murder her husband just after few days of marriage or after few years of marriage. And she is ultimately finding someone else attractive, or is in a romantic relationship, an extramarital relationship. What sense does it make? We are not animals, we are humans. And the institution of marriage is meant to keep us civilized in our society, so that we have a sound family structure. Our children don't have confusion as to who their parents are, or how many fathers or how many mothers they have, how many half sisters or step sisters or step brothers or half brothers they have, which is a case in the West, and which is disgusting. हम इंडियंस इस तरीके के कल्चर को नहीं फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ कल्चर, इट इज अ बारबरिक वे ऑफ लिविंग लाइफ. इट इज अनसिविलाइज्ड. You cannot raise your child in a family where the parents are constantly fighting, or they are abusive to each other, disrespectful to each other, to come to a point where now they have grown up and now you are pushing them to get married, despite the fact that you yourself have been in a very distorted and miserable marriage, and have caused years of trauma to your child when he or she was growing up. So don't do this, because many parents have done this, many grandparents have done this. At least आप जब इस जनरेशन में हो, and you are so much aware and you have access to so much of knowledge and wisdom, you have already witnessed the case of failed marriages of elderly people or people who have got married before you. You should be taking this decision very केयरफुली एंड विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसे केसेस नहीं हुए हैं जहाँ हस्बैंड्स ने अपने वाइफ का मर्डर नहीं करवाया है, पर वाइफ का अपने हस्बैंड का मर्डर करना एक बहुत ही रेयर केस है, या कहें कि इन कंपैरिजन टू हस्बैंड मर्डरिंग देयर वाइफ, a wife murdering her husband is still not that prevalent in our country. और जो केसेस हुए भी हैं वो बहुत ही ब्रूटल हीनियस केसेस हैं, और इसमें बहुत सोच समझकर एक बहुत ही हिंसक वे में अपने हस्बैंड को मारने का पूरा प्लान रचा गया और मर्डर को अंजाम दिया गया. और इस इन इंसिडेंट्स ने पूरे इंडिया में लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर आज के समय में फीमेल्स या वाइफ्स इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही हैं, इतनी डिससैटिस्फाइड क्यों है अपने मैरिज से, और इस तरीके के एक्सट्रीम मेजर्स को वो कैसे अडॉप्ट कर ले रही है. और अगर इन लड़कियों को अपने हस्बैंड्स पसंद ही नहीं थे, तो इन्होंने इनके साथ शादी की ही क्यों? आखिर क्या रीज़न था कि पहले तो इन्होंने शादी कर ली, और शादी के कुछ दिनों बाद ही या कुछ सालों बाद ही इन्होंने ये मन बना लिया कि इन्हें किसी भी तरह इस शादी से निकलना है, और सिर्फ निकलना नहीं है, अपने हस्बैंड को दुनिया से विदा भी कर देना है. आज हम समझेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसके कारण फीमेल्स इन इंडिया आर dissatisfied in their marriage and are unable to proceed their marriage. तो चलिए समझते हैं डिटेल में. देखिए, इंडिया में पहली चीज़ ये है कि गर्ल्स की अपब्रिंगिंग एक बहुत ही कंज़र्वेटिव सेटअप में की जाती है आज के समय में भी, और कई सारे फैमिलीज़ हैं आज भी इंडिया में जो बचपन से ही फीमेल्स को बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ बड़ा करते हैं, और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और एक लिमिटेड लाइफ़स्टाइल को जीने के लिए फ़ोर्स करते हैं. अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि कई सारी फीमेल्स नहीं चाहती कि वो सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ बन के रहे, या एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करे जहाँ उसको खुल के जीने की आज़ादी ना हो, या एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनको लाइफ़ बितानी पड़े जिसके साथ उनको कंपैटिबल फ़ील नहीं होता, या उन्हें कोई अट्रैक्शन ही फ़ील नहीं होता. पर ये सारी बातें इंडियन पेरेंट्स नज़रअंदाज करते हुए और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए बस उन्हें एक बात कहते हैं कि यू आर अ फीमेल, और तुम एक इंडियन फीमेल हो, और इसलिए ये तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी
जो इच्छाएँ हैं उसे सेकेंडरी रखो, अपनी ख्वाहिशें या अपनी जो पसंद है उसको सेकेंडरी रखो और जो सोसाइटी तुमसे एक्सपेक्ट करती है उसको ही तुम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानकर अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लो, इवन द डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड। पहला रीज़न व्हाई अ फीमेल इज़ डिससैटिस्फाइड इन हर मैरेजेस, उसने कभी वो डिसीजन खुद लिया ही नहीं, यानी शी नेवर टुक द डिसीजन टू मैरी द पर्सन शी हैज़ बीन मैरिड टू बाय हरसेल्फ। वो एक फोर्स्ड डिसीजन था जो उसके फैमिली मेंबर्स ने, रिलेटिव्स ने किसी वजह से उसको कन्विंस करके उस मैरिज में एंटर करने के लिए रेडी कर दिया और जब वो मन मारकर उस मैरिज को कर लेती है, उस इंसान के साथ रहना शुरू करती है एंड रियलिटी हिट्स हर हार्ट दैट ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था या ये इंसान तो मुझे पसंद ही नहीं था। तो फिर उसको हर दिन वो रियलिटी परेशान करती रहती है और उसको बहुत ही चीटेड फील होता है कि मैंने ये डिसीजन दूसरों के कहने पर ले लिया और इस डिसीजन के कारण आज मैं इतनी डिससैटिस्फाइड हूँ कि मुझे उस इंसान के साथ रहना तो दूर पर उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं आ रहा है। और फिर होता क्या है, इस तरीके के केसेस जहाँ वो ये मन बना लेती है कि वो मर्डर कर देगी अपने हस्बैंड का और इस पूरी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगी। सेकंड रीज़न ये होता है कि वो पैसों की वजह से मैरिज में एंटर करती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस फीमेल्स को यह बोल के कन्विंस किया जाता है कि अरे देखो वो लड़का कितना पैसे वाला है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी अच्छी हैं और वो कितना वेल सेटल्ड है। विदाउट कंसिडरिंग कि मटेरियल वेलबींग तो आपने देख लिया, लेकिन क्या इमोशनल लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अट्रैक्शन ना होना। हो सकता है कि जिस लड़के को वो यह सोच के एक्सेप्ट कर लेती है और शादी के लिए रेडी हो जाती है कि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास फेम है या उसके पास बहुत वेल्थ है, लेकिन वो इस इंसान के प्रति कोई अट्रैक्शन फ़ील ही नहीं करती, व्हिच इज़ अ वेरी अंडररेटेड आइडिया इन इंडिया व्हेन पीपल decide to get married, but it is important and it is the initial stage of liking someone. एंड येस, अट्रैक्शन इज़ नॉट एवरीथिंग बट आप इस एस्पेक्ट को निकाल के फेंक भी नहीं सकते एक ऐसे रिलेशनशिप में जो बहुत ही इंटीमेट और बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है अनलाइक अदर रिलेशनशिप्स। इसमें इंसान का हर तरीके से एक्सेप्टेंस में होना या राज़ी होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों या इस तरीके से डिससैटिस्फैक्शन ना हो उसे और इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेप्स उसे ना उठाने पड़े। और फीमेल से तो जनरली हमारी इंडियन पेरेंट्स या इंडियन सोसाइटी ये पूछती भी नहीं है कि आर यू लाइकिंग दैट पर्सन और नॉट, अपार्ट फ्रॉम हिज मटेरियल वेलबींग, क्या तुम्हें वो इंसान अच्छा भी लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता। थर्ड रीजन ये है कि हो सकता है घर में कुछ बड़े बूढ़े ऐसे हों जो अपने डेथ बेड में हैं, मतलब दे आर सून टू लीव दिस वर्ल्ड, और उनका झांसा देके या इमोशनल ब्लैकमेल करके घर में बच्चों को फोर्स किया जाता है कि बिफोर दे डाई यू शुड गेट मैरिड सो दैट द एल्डरली इन द फैमिली कैन ऑल्सो विटनेस एंड बी अ पार्ट ऑफ योर मैरिज। जो कि बहुत गलत है क्योंकि देखो उनकी लाइफ उन्होंने अपनी पूरी जी ली है और अपनी लाइफ जिस तरीके से उनको जीना था या जो डिसीजंस लेना था वो दे हैव डन इट ऑल, लेकिन उनकी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए या उनकी एक सेल्फिश विश को फुलफिल करने के लिए आप जल्दी-जल्दी में या जल्दबाज़ी में या ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं करवा सकते हो, ताकि उनको सैटिस्फैक्शन मिल जाए और उनकी मन की हो पाए, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। और इस चक्कर में कई बार फीमेल्स बहुत गलत रिलेशनशिप्स में फँस जाती हैं और अपनी मैरिज में खुद परेशान रहती है और आगे की जनरेशंस को भी बहुत दुखी करके रखती है क्योंकि द मैरिज हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन ऑल्सो इफ इट इज़ अब्यूसिव, इफ इट इज़ फुल ऑफ ट्रॉमा, फुल ऑफ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वारल्स। नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू हैव रीच्ड अ सर्टेन एज, तो फीमेल्स को ये बोल दिया जाता है कि अब सेटल होने के लिए कम से कम शादी कर लो सो दैट समबडी कैन टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। तो शादी का पर्पस और मोटिव क्या रख दिया जाता है कि यू शुड बी गेटिंग मैरिड सो दैट योर फाइनेंसेस कैन बी मेट बाय अ गाय बिकॉज ही इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड डूइंग वेल, which is wrong. Why? Because
इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई फाइनेंशियली वेल ऑफ है या इज डूइंग गुड और इज इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो कंपैटिबल विद योर डॉटर और इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर डॉटर। या ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैसे कमा रहा है तो वो आपकी बेटी के ऊपर अपने पैसे लुटाएगा ही। हो सकता है कि वो पैसे वाला हो के भी एक बहुत ही माइजर मेंटालिटी रखता हो, एक बहुत ही एक्सप्लॉइटिव मेंटालिटी रखता हो, क्योंकि कई सारे केसेस में आप देखोगे कि जो ग्रूम्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होने के बाद भी और अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी दे आर डिमांडिंग अ हेफ्टी डाउरी in cash and in kinds. So, what is the use of getting married to a man who is financially independent or well off? अगर उसे भिखारी ही बनना है और उसे दहेज में मोटा पैसा और गिफ्ट्स चाहिए, तो इट्स नॉट रिजॉल्विंग द पर्पस कि अगर आपकी डॉटर इज नॉट financially doing well or is financially independent, so for just that reason you just get her married to a man who is earning well without considering other aspects which are also important, whether she is attracted to him or not, whether they both are compatible or not, whether they have any emotional investment between each other or not, and whether they have similar habits, lifestyles and goal for life or not. नेक्स्ट रीजन ये है जो आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि द गर्ल इज already in love with somebody else, but for any reason, maybe due to caste, religion, culture, or dislike by the parents don't agree to get their daughter to marry that person whom she likes or whom she has already given her heart to. So, इस केस में again females get very offended and she feels cheated and she feels unfulfilled because she has already given a emotional commitment to someone else, and just because parents want to satisfy their ego without even considering whether that person is actually good or not, they just simply deny कि you cannot get married to this guy because we don't like him. ये भी नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि that guy is more compatible with their daughter. नेक्स्ट रीजन ये है कि पेरेंट्स की खुद की मैरिज बहुत टॉक्सिक और ट्रॉमेटिक रही है, जिसने डॉटर के माइंड में मैरिज को लेके बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है और बड़े होते हुए उसने अपने पेरेंट्स की मैरिज की इतने ट्रॉमा को झेला है, इतना फ्रस्ट्रेशन झेला है अपने पेरेंट्स के तरफ से और खुद भी अपने ग्रोइंग ईयर्स में अपनी खुद की लाइफ के साथ जो भी वो इश्यूज डील कर रही थी अपने पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स के साथ, वो एग्री नहीं कर पाती है, वो इमोशनली रेडी ही नहीं होती है मैरिज के लिए। और ये पेरेंट्स जो पूरे लाइफ अपनी बेटी के सामने लड़ते रहे और अगली फाइट्स और ब्लेम गेम और ना जाने कितना वॉयलेंस करते रहे, वो उसे फोर्स करते हैं नाउ यू शुड गेट मैरिड एंड यू शुड जस्ट गो एंड स्टार्ट योर फैमिली, विच इज रॉन्ग। जब आप खुद अपनी मैरिज ढंग से नहीं चला पाए और आपने इतने सालों तक सिर्फ सोसाइटी के लिए अपनी मैरिज को ड्रैग किया बिना ये सोचे कि आपके बच्चों पे उसका क्या असर पड़ रहा है, एवरी डे दे आर गोइंग थ्रू हेल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उनका कॉन्फिडेंस लो है, वो इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन से दूर भागते हैं क्योंकि अब बड़े होके उनकी लाइफ में सिर्फ एक मोटिव बन गया है, स्पेशली गर्ल्स के माइंड में, कि इफ माई मदर हैड टू सफर सो मच and had to go through so much exploitation, I would make sure I don't go through the same because I have already had my share of trauma by being raised by the same parents who had a difficult or distorted marriage. अब उसको सिर्फ शांति चाहिए, उसको किसी पे भी भरोसा ही नहीं होता है क्योंकि if parents are not looking after the needs and are not giving the right amount of care and love to their child, वो बच्चा किसी और पे कैसे विश्वास करेगा, एंड एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ हर मेंटल पीस, हर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी? नो, ऑफ कोर्स नॉट। और लास्ट रीजन ये है कि हमारी इंडियन फैमिलीज में फीमेल्स को, यानी जो वाइफ होती है, उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है मेजॉरिटी फैमिलीज में, जहाँ उसको सिर्फ घर का एक नौकर या काम वाली बाई की स्टेटस के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। और ये देखते हुए जब एक फीमेल बड़ी होती है कि हर मदर इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ मेड, लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन, her aunts are being treated that way, her elder sisters have been treated that way, or in the neighborhood that females have been treated in a very
अनएक्सेप्टेबल मैनर बाय देयर हस्बैंड्स एंड देयर इन-लॉज़, तो वो मैरिज से दूर ही भागती हैं क्योंकि उनको मैरिज इज़ इक्विवेलेंट टू प्रिज़न और केज। और कौन एक कैद की ज़िंदगी जीना चाहता है? कौन किसी की गुलामी करना चाहता है? कौन नौकरानी बनना चाहता है? कौन किसी के साथ सिर्फ़ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए शादी करना चाहता है या सिर्फ़ बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना चाहता है? गर्ल्स नीड emotional fulfillment also, they need professional fulfillment also, they need their personal space also, they want to use their time for their well-being also. But growing up, जब ये लड़की ये देखती है कि ना तो मेरी माँ को, ना मेरी आंट्स को, ना मेरी दादी को, ना मेरी नानी को, ना आस-पास किसी बड़ी बहन को शादी के बाद खुशी तो दूर की बात है, शांति तक नसीब नहीं हुई, तो वो क्यों इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अपनी पैरों की बेड़ियाँ बनाना चाहेगी और क्यों अपनी आज़ादी का गला घोटना चाहेगी? शी वुड definitely refrain from this institution of marriage. And this is very prevalent in our Indian culture where patriarchy is followed even today very rigorously और फीमेल्स को सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए एक टूल की तरह माना जाता है और उससे यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि यू जस्ट फुलफिल अदर्स हैप्पीनेस, अदर्स नीड्स एंड be a tool of amusement for your family, for your husband, for your children. ऐसे लाइफ को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई इंडियन फीमेल्स आर so unsatisfied in their marriage that they have decided to kill their husbands to get out of that unfulfilling life which they never wanted. देखो, एक बात ये क्लियरली हम सबको समझ आनी चाहिए कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद अ मैन because of any reason you're not attracted to him, you don't like his lifestyle, you don't like his habits, you don't want to live with in-laws, and he wants to keep his parents with him, or he is not earning that well to meet your expenses, or he is not that much educated which would make you feel good about him, then on the very first place, please don't even consider that man as a potential life partner. क्यों तुम किसी के बेटे की या किसी भी इंसान की लाइफ को कैजुअली लेना चाहोगी और उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहोगी जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं या तुम्हारी सोसाइटी में लोग तुम्हें ये बोल रहे हैं कि यू शुड फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड कीप योर प्रायोरिटीज अवे एंड accept whatever you are getting. If you are unsatisfied with any aspect of a guy's life or you're not feeling that this guy or this man can be your lifelong life partner, then just don't go further, any further. Just say it clearly that, see, I don't like you.